that in a balanced situation, the counterclockwise momentum and clockwise momentum are balancing each other. So we calculated this and we get in both cells that it is about 44 Newton meter momentum produced. And in both cases, it was counterclockwise. Okay. Whether you try to balance the clockwise or whether you try to balance the counterclockwise. There we did another example. Same thing happens in this example that we calculated the two momentums produced by the couple M1, M2. And here we calculate the resultant couple. Okay. Here we calculated the resultant force, and M1, M2 plus we get something 60I plus 22.5J plus 30K Newton meters. We have to keep the same formula applicable everywhere, that is force into force arm. Force arm is 0.3I multiplied by 125, its J component, and 125 its K component. But you are not given the angle, you will be given the inclination. Okay, so there you can calculate these components very easily. If you calculate 4 by 5, it will be same as if you were given the angle. So you would have applied cos or sine theta of that angle. Now today we will discuss something different, that is called center of gravity. We all are aware of this concept. You have studied in your high school definitely. The body is composed of an infinite number of particles of differential sizes. And so if a body is located within the gravitational field, then each of these particles will have a weight. Weight means dW. These weights will form an approximately parallel forces system, and the resultant of this system is the total weight of the body, which passes through a single point called the center of gravity. Okay, so it means the forces will be equal, but they will pass through a single point in the whole rigid body, and that single point is called the center of gravity, capital G. As in this figure, you can see this point G is the center of gravity. It means all the parallel forces will be passing through this particular point. So it means that if you balance this object, this body from this point, the whole body will be balanced. So it means that if we want to balance this object, we need to apply force on this single point instead of putting force at different points on this object. So we just need to calculate that where this point is located in this object. So it can be a uniform shaped object or it can be an irregular shaped object. So our point of interest would be to figure this point out. So we can balance this whole object from this particular point because it is attracted by the earth from this point only. Okay. Using the method outlined, body of the weight is the sum of all the weights of its particles. Okay, this we already know, that since individual particles don't have any separate identity, their identity is with respect to all the objects. Okay, जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उनकी इनफरादी कोई हैसियत नहीं है, मजमूई हैसियत में वो अफेक्ट करते हैं. तो उनकी मजमूई हैसियत को मद्देनजर रखते हुए आप क्या करेंगे, वो सारे पार्टिकल्स को ऐड कर लेंगे
तो उनकी एक रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी विच वी कॉल्ड एज W, कैपिटल W. सो वी इंटीग्रेट ओके और ओवरऑल द पार्टिकल्स. DW हमने यहाँ पर एक पार्टिकल के लिए यूज किया था. तो जितने भी पार्टिकल्स हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम स्मॉल 0 टू इंफिनिटी, या जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, उन सबको हम ऐड कर लेंगे. The location of center of gravity measured from y-axis is determined by equating the momentum of W about y-axis. ठीक है, तो momentum of W कि ये W definitely force act कर रही है ना इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अब about y-axis कितना मोमेंटम प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी. अब ये G पॉइंट जो है ये इनफैक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर इसकी एक पोजीशनिंग है, यानी कि x पर इसका ये डिस्टेंस है, y पर इसका ये डिस्टेंस है. तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स आपने कैलकुलेट कर लिए कि इसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं. तो अब इसका मालूम करना जो है वो हमारे लिए असल इशू है कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे डिटरमिन करेंगे. यस सर, इजी. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं सर. आप बताएं क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक किसी भी ऑब्जेक्ट का इरेगुलर या रेगुलर का वो वाला पॉइंट होता है जिधर जो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है और वो हर तरह से मतलब कैंसिल आउट हो जाता है उस पॉइंट पे मास उस ऑब्जेक्ट का. बस तो यही हमने भी डिस्कस किया. बस मैंने थोड़ा सा शुरू में इंग्लिश में बताया था, आपने मुझे उर्दू में बता दिया. जी अच्छा. तो हमारे लिए अभी मेन मसला क्या है कि उसको डिटरमिन करना कि वो है कहाँ, और वो पता चलाने का काम हम W से करते हैं. Equating the moments of W about y-axis. The sum of the moments of the weights of the particles about this same axis. If dW is located at point x, y, z. ये इसका लोकेशन आ गई, एड्रेस आप समझ ले, मिल गया हमें कि x, y, z. अब ये हेड के साथ लगाने का मतलब है कि ये एक यूनिक पॉइंट है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कोई भी शेप्ड ऑब्जेक्ट है. बस इसमें एक चीज का जो है वो फिक्स्ड है कि यहाँ पर रिजिड ऑब्जेक्ट होगा, रिजिड बॉडी होगी. यू कैन नॉट अज्यूम फ्लूइड, ठीक है ना, यू कैन नॉट अज्यूम डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना. डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट आप नहीं अज्यूम करेंगे और फ्लूइड आप नहीं अज्यूम करेंगे, ठीक है. तो आप जो अज्यूम करेंगे वो क्या होगी, रिजिड बॉडी होगी, यानी कि उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं हो रही होगी. तो x हैट, y हैट और z हैट जो है ये कोऑर्डिनेट्स आ गए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के. हमने अज्यूम कर लिए कि ये है और हमें इनको मालूम करना है. ठीक है. mr मोमेंटम, रिजल्टेंट मोमेंटम का y कंपोनेंट, तो हम जितने भी y एक्सिस पे मोमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको सम कर देंगे. ठीक है. तो x हैट w बेस इंटीग्रेट करें आप x कोऑर्डिनेट के साथ. ठीक है जी, इजी. सर ये जो x हेड, y हेड और z हेड आप ये बोल रहे हैं ये एक पॉइंट है, तो सर ये जो ऊपर फिगर 9.1 बनाई हुई है ये जो टोटल इनकी जो लेंथ ली हुई है एक्सिस और वो जो W फोर्स जहाँ पे वो कर रही है मतलब कोऑर्डिनेट पे आ रही है, तो वो तो लेंथ को शो कर रही है W x यस सर ये y हेड, x हेड और z हेड. ये इसके कोऑर्डिनेट्स है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के. अच्छा सर, ये जो पॉइंट G है, पॉइंट G होना चाहिए ना अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, अगर G पॉइंट G ही है. पॉइंट G के कोई एड्रेस तो होगा ना कि x पर z पर ये कहाँ लोकेटेड है. जी अच्छा सर, समझ गया. तो ये आपने रिजल्टेंट मूवमेंट का y कंपोनेंट निकाला, यानी कि y एक्सिस पे जितने मूवमेंट्स हैं उनका सम कर दें.
वो कैसे निकलेगा, ये W फोर्स है और x एक्सिस जो है वो x पे जो इसकी एवरेज x है वो आप कैलकुलेट, एवरेज x इसलिए ले रहे हैं आप कि बहुत सारे x होंगे ना इसके अंदर, हर पॉइंट का डिस्टेंस x पर डिफरेंट होगा। जैसा हमने कहा ना कि एक रिजिड बॉडी जो होती है बहुत सारे पार्टिकल्स का मजमुआ होती है, ठीक है। तो x बार जो है वो बेसिकली एवरेज लिया जा रहा है, जितने पार्टिकल्स थे उनका जो जो डिस्टेंस था उन सारे डिस्टेंसेस को ऐड करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिवाइड करा तो वो एक x आ गया हमारे पास, उसको हम x बार कह रहे हैं। तो वो x बार हमने w से द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करा तो हमें मोमेंटम ड्यू टू y कंपोनेंट मिल गया। सिमिलरली इफ द मोमेंट्स आर सम्ड अबाउट x एक्सिस तो वो y से सम हो रहा होगा, इसी तरह z के लिए वो x से हो रहा होगा, ठीक है। तो y के लिए आपने x लिया और x के लिए y लिया, क्योंकि मोमेंट आर्म जो होगा वो तो उस एक्सिस में होगा ना, डिफरेंट वाले। और आपने यहाँ पर देखे समीशन ऑफ एफ जेड लिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ये एफ जेड जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, नेगेटिव। अब यहाँ इसको डाउनवर्ड को पॉजिटिव कहा जा रहा है क्योंकि ये नेचुरल डायरेक्शन है। कोई चीज अपवर्ड जाएगी तो वो अगेंस्ट नेचर जा रही है। इस तरह हम रोटेशन के अंदर काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कहते हैं क्योंकि ये नेचुरल डायरेक्शन है, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई जितने भी एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स हर मैटर के अंदर, किसी भी मैटर में कोई भी स्टेट हो, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली द रोटेशन एंड स्पिनिंग ऑफ ऑल द हेवनली ऑब्जेक्ट्स दैट इज ऑफ अर्थ स्पेशली, इट आल्सो स्पिन्स इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नेचुरल डायरेक्शन होती है काउंटर क्लॉक्स, तो वी अज्यूम काउंटर क्लॉक एज and clockwise as negative. Same thing happens in the case of gravity. If something is moving downward, although with reference to x, y or z axis, we assume that negative, but with reference to the natural direction, that is assumed positive. If something is going upward, तो आप उस पर कोई external force लगा रहे हैं, बगैर उसके वो upward नहीं जा सकती, ठीक है, तो वो negative assume किया जाएगा। तो यहाँ आप देखें एफ आर रिजल्टेंट फोर्स z डायरेक्शन डाउनवर्ड, उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं और वो आप W से निकालेंगे, ठीक है। फाइनली इमेजिन द बॉडी इज फिक्स्ड विद द कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस सिस्टम इज रोटेटेड 90 डिग्री अबाउट द y एक्सिस, फिगर 9.1 सी, ठीक है ना। 90 डिग्री पे आपने उसको रोटेट कर दिया बिल्कुल। पहले वो इस कंडीशन में था, अब इस कंडीशन में आ गया, ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे चला गया। Z जो है, देखिए Z यहाँ था पहले, ठीक है, आपने इस तरह इसे रोटेट करा। इफ आई मार्क इट, तो आपने इसको कैसे रोटेट किया, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। आपने इसको ऐसे रोटेट किया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो Z जो है वो x की जगह आ गया, Y वही है तो अबाउट y एक्सिस रोटेट हुआ, ठीक है, और x जो है वो देखिए नीचे चला गया। तो उससे क्या फर्क पड़ा कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये इस तरह से आ गया। पहले W इस तरह सेट कर रहा था, अब W यहाँ से यूं ऐड कर रहा है, ठीक है। तो जो पहले ये चीज पहले देखें आप क्या थी, X थी, अब ये Z हो गया, नाउ इट इज Z, पहले ये X था, ठीक है। और अब ये वाला X हो गया, पहले ये Z था, ठीक है। तो X और Z इनने बेसिकली अपने आप को इंटरचेंज कर लिया है, Y अपनी जगह मौजूद है, पहले ये Y था, अब भी ये Y ही है, ठीक है। So this is how we rotate this particular coordinate system. Then the sum of the moments about the y-axis. तो Z से फिर आपने इसको कैलकुलेट करा,
इंटीग्रेट dwz। इंटीग्रेट का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है ना। आप जितने भी पार्टिकल्स हैं आपके पास, उन सब का कोई ना कोई z एक्सेस होगा, ठीक है। उन सारे z एक्सेस को आपने ऐड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है बेसिकली वो इधर दिखा दी है, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो इसका जो रिजल्ट है वो कैसे निकालेंगे आप, वो रिजल्ट ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप क्या करें, आप जितने भी जेड्स हैं, फर्ज कर लें 5 मिलियन पॉइंट्स हैं, पार्टिकल्स हैं। अब 5 मिलियन पार्टिकल्स का एक्स जेड एक्सिस पे जो डिस्टेंस आ रहा होगा, उन सारे डिस्टेंसेस को ऐड करें और फिर डिवाइडेड बाय 5 मिलियन कर दें, तो आपके पास एक z की एवरेज वैल्यू आ जाएगी। उस एवरेज वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दें वेट को, तो ये आपको z एक्सिस में उसे लोकेट करने में मदद करेगा कि z एक्सिस में उसकी पोजीशन क्या होगी। डेफिनेटली आप उसको जब तक नहीं लोकेट कर सकते जब तक उसका z, x और y तीनों ना गिवन हो, ठीक है। तो तीनों को हम इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, x, y और z। जब ये तीनों हमें पता चल जाएंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कहाँ पर, ठीक है ना। आपको तो पूरा एड्रेस मिल जाएगा ना उसका फिर जी का। Therefore, the location of center of gravity G with respect to x, y, z becomes, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूला आ गया कि x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है, तो आप इस तरीके से निकाल। तो ये वही आपने जैसे मैंने एवरेज की बात की थी ना आपसे, तो एवरेज में क्या होता है कि आप सम करते हैं और डिवाइड बाय नंबर कर देते हैं। वही यहाँ पर भी वही देखें, अलग अलग x बार, y बार, z बार निकाला है। तो वो यही है कि पहले आपने सम करा, ठीक है, और सम को नंबर से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास x बार आ गया, y बार आ गया और z बार आ गया, ठीक है। Here x, y, z बार आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको x, y, z मिल गया डेफिनेटली, तो आपको फिर इसका मतलब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पता चल गया कि x पर इतना होगा, y पर इतना होगा और z पर इतना होगा। जबकि टिल्डा के साथ आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पार्टिकल इन द बॉडी 9.1a। तो जो टिल्डा के साथ है, ठीक है, हेड या टिल्डा कहते हैं, x, y, z टिल्डा, दे आर ऑल फॉर एवरी पार्टिकल। अब मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हर पार्टिकल का एक्स, वाई, जी जो है वो x हेड, y हेड, z हेड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जबकि बार जो है वो सारे पार्टिकल्स का एवरेज है, ठीक है। बार क्या है, बार इज द एवरेज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। जेर इजी। सर पहले से हुआ था। महमूद, यू आर आस्किंग समथिंग? नो, ओके। सो दोनों के अंदर हमें फर्क पता होना चाहिए कि अगर टिल्डा लगा हुआ होगा तो उसका मतलब है हर पार्टिकल का कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जी, और अगर बार होगा तो इसका मतलब सारे पार्टिकल्स का एक एवरेज निकला हुआ, ठीक है। तो बार हमेशा एक होगा और टिल्डा वाले कोऑर्डिनेट्स बहुत सारे हो सकते हैं। जितने पार्टिकल्स हैं उतने वो बार वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे। Now, center of gravity. Now we'll discuss center of mass. In order to study the dynamic response or accelerated motion of a body, it becomes important to locate the body's center of mass, cm. This location can be determined by substituting dw is equals to gdm into equation 9.1. Since g is constant, it cancels out, and so you get x बार, y बार, z बार। तो आप देखें वही इक्वेशन आ रही है जो पहले आ रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास आर इन फैक्ट सेम थिंग्स, ओके। तो यहाँ पर डायग्राम 9.2 सेंटर ऑफ मास आपको नजर आ रहा है।
फर्क सिर्फ इतना सा है ग्रेविटी और मास में कि सेंटर ऑफ मास हैज नथिंग टू डू विद ग्रेविटी, ठीक है। सेंटर ऑफ मास विल रिमेन सेम एट ऑल प्लेसेस, center of gravity will change with reference to positions. Center of gravity will change. For example, whatever you have on earth will be different from moon, but center of mass will not change. Although since center of mass do not have the impact of gravity, so it means जो भी ग्रेविटी लग रही है, चाहे वो मार्स मून पर हो या वो मास अर्थ पर हो, उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो चेंज नहीं होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटी के अंदर ग्रेविटी का अमल दखल है। इस तरह हमने अभी डिस्कस किया कि सारी पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, वो एक ही पॉइंट से गुजरती हैं, जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जबकि सेंटर ऑफ मास के अंदर जो सेंटर होता है वो एक वर्चुअल या इमेजिनरी पॉइंट होता है, ठीक है, वो एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, वो कोई रियल पॉइंट नहीं होता। तो ये थोड़ा सा फर्क है दोनों में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में सेंटर ऑफ मास है। We find our work in both for mass and gravity. जी, most probably हम दोनों पर ही काम कर रहे होंगे ज्यादातर। अब यहाँ जो डीएम दिखाया है फिगर के अंदर, ये कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास कुछ भी हो सकता है, एम मास है। तो इसलिए आप देखें कि इसके कोऑर्डिनेट्स में टिल्डा लगा हुआ है, एक्स टिल्डा, जेड टिल्डा, वाई टिल्डा, क्योंकि ये एक पार्टिकल, यही होगा कोई और। यहाँ पर कोई पार्टिकल है अगर, ठीक है, मैं अगर यहाँ इसको पार्टिकल को बनाऊं, लेट मी पुट अ पार्टिकल ओवर हियर, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ और होंगे अगर मैं इसको प्लॉट करूं कि वो यहाँ पर आता है, ठीक है, तो यहाँ से ये उसका x हो गया, ठीक है, ये उसका y हो गया, और ये जो लाइन मैंने खींची है ये z हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल है, यहाँ पर भी एक पार्टिकल है, यहाँ पर भी एक पार्टिकल है, यहाँ भी एक पार्टिकल, तो हर पार्टिकल के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो सारे टिल्डा से रिप्रेजेंट होंगे, जैसे यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये एक्स वाई जेड टिल्डा है, तो इसका मतलब एक पार्टिकल का यहाँ मास आ गया, ठीक है। अब CM जो आ रहा है ये सेंटर ऑफ मास है, ये एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आप देखें तो वो x बार, y बार और z बार से आ रहे हैं, ठीक है। तो बार लगाएंगे तो वो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ मास। और अगर x y z टिल्डा लगाएंगे तो वो फिर एक एक पार्टिकल का एड्रेस होगा, ठीक है। जितने मैंने पॉइंट्स बनाए हैं रेड में वो सारे एक दूसरे से अलग है ना, तो इनकी पोजीशन एक्स वाई जेड पे मुख्तलिफ होगी, और वो सारे टिल्डा से रिप्रेजेंट होंगे। और मैं सारे टिल्डा एक्स, टिल्डा वाई, टिल्डा जेड का अगर एवरेज ले लूं तो वो मुझे CM के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे एक्स वाई जेड में, और वो मैं बार से रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे वाई बार है, ये जेड बार है, और ये एक्स बार है, ठीक है। तो आप देख लें, इसलिए दोनों के एक्सप्रेशन जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर x बार, y बार, z बार का एक्सप्रेशन आ रहा है, वो ही यहाँ पर भी x बार, y बार, z बार। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जो है उनके कोऑर्डिनेट्स आप एक ही तरह से निकालेंगे। जिस तरह यहाँ आपने सम किया था, उस पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाय उसका डिस्टेंस, ठीक है, उस पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाय उसका y डिस्टेंस, पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाय z डिस्टेंस, फोर्स इनटू मोमेंटम, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मासेस। सम कर रहे हैं ना आप, नंबर ऑफ मासेस आ जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जितने पार्टिकल्स हैं, क्योंकि आपने 25 पार्टिकल्स लिए फर्स्ट कर लें, तो 25 पार्टिकल्स के x डिस्टेंसेस होंगे, 25 के y डिस्टेंसेस होंगे, 25 के z डिस्टेंसेस होंगे, ठीक है। तो सारे मासेस को ऐड करने के बाद
आप 25 से सबको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज XYZ आ जाएगा, और जो एवरेज आएगा डेफिनेटली वही पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। सर ये दोबारा ठीक है, रिपीट कर दीजिएगा एक और दफा, ये जो अभी आपने बताया 25 से डिवाइड होगा, ये वाली बात। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है? यस यस सर। बस तो आपने इन सबको इंटीग्रेट का मतलब सबको ऐड करा मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, dm मल्टीप्लाई बाय z टिल्डा, यस सर। dm मल्टीप्लाई बाय y टिल्डा, dm मल्टीप्लाई बाय x टिल्डा, यस सर। और हर पार्टिकल के लिए मल्टीप्लाई करके उसको सम कर दिया आपने। तो यस मल्टीप्लाई सर। करके सम करने के बाद आप उसको तादाद से डिवाइड कर दे तो एवरेज आ जाएगा आपके पास। ओके सर। सर अगर हम सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट की पे अगर लें, कंसीडर करें, तो उसमें भी टिल्डा आएगा। अगर एक अकेले सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट का मास हम कंसीडर करें तो अकेले टिल्डा आएगा या नहीं आएगा? यस सर, नहीं, 12 आएगा। टिल्डा टिल्डा जो होता है ये एक पार्टिकल के मास के लिए आता है, मैं पार्टिकल का सेंटर नहीं ले सकता, ठीक है ना। मैं पार्टिकल का सेंटर उस सूरत में लूंगा कि अगर पार्टिकल उस बॉडी का हिस्सा नहीं है। हम तो अज्यूम ये कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो कुछ पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है। अब जब वो पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है तो मैं हर पार्टिकल का इंडिविजुअल मास ले सकता हूँ, उसका इंडिविजुअल सेंटर नहीं ले रहा। ठीक है, मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ वो पार्टिकल जो है वो अपना बजाते खुद सेंटर है, आप यूं समझ लें। ठीक है, मैं पार्टिकल को जो भी उसका मास है मैं कह रहा हूँ ये बजाते खुद मास अपना ही खुद सेंटर है, उस अपने मास का खुद सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, अब उस कलेक्टिवली उन सब पार्टिकल्स को मैं इकट्ठा करता हूँ तो मुझे उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का, उस शेप का एक सेंटर ऑफ मास मिल जाता है। ठीक है, जिस तरह हर पार्टिकल का एक है, इसी तरह से उस ऑब्जेक्ट का भी एक मुझे मिल जाता है। अब जब दो कॉन्सेप्ट्स हमारे हो गए, मास और ग्रेविटी के, और हमने देखा कि इसके अंदर भी आपके पास जो फार्मूला आ रहा है वो डिफरेंट नहीं है मास के फार्मूले से, जो ग्रेविटी का फार्मूला है वही मास का फार्मूला है। तो इसका मतलब कि अब हम इस पोजीशन में है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सके। तो अब इनको कलेक्टिवली, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को कलेक्टिवली वी कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक है, तो कलेक्टिवली we'll call it centroid. Centroid means that that point will not only be center of gravity but also center of mass. Number one. Number two, that we assume in centroid, or the general assumption in this text, जितना भी हमारा कोर्स है, जहां जहां भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास का तस्करा करेंगे वहां वहां हम अज्यूम ये करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो थ्रू आउट होमोजीनियस है, उसकी कॉम्पोजिशन होमोजीनियस है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल वी आर नॉट मिक्सिंग वुड एंड स्टोन्स। ठीक है, वी आर नॉट क्रिएटिंग अ बॉल विच इज क्रिएटेड ऑफ वुड एंड स्टोन। इट मीन्स यू आर मिक्सिंग टू डिफरेंट कॉम्पोजिशंस। ठीक है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि either you are taking the ball of a wood or made of metal for example। ठीक है ना, कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स को हम नहीं ले रहे हैं, हम यूनिफॉर्म या होमोजीनियस ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो वॉल्यूम जो है वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट का मैं लूंगा कि जो यूनिफॉर्मली क्रिएटेड हो, होमोजेनाइज्ड हो, थ्रू आउट एक जैसी हो। अगर कंक्रीट का कोई शेप है तो पूरा उसका बीम है, कंक्रीट का बीम है तो मैं उसका सेंट्रोइड कैलकुलेट करूंगा। अगर वुड का बीम है तो मैं उसका सेंट्रोइड कैलकुलेट करूंगा। अगर मेटल का बीम है तो मैं उसका सेंट्रोइड कैलकुलेट करूंगा। तो मैं बीम की कंपोजिशन थ्रू आउट एक ही अज्यूम करूंगा। ठीक है, इट कैन बी कंपोजिट बट आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट। सर ये जो ये वाली बॉडीज होंगी ज्यादातर सिमेट्री होंगी, सिमेट्रिक होंगी? देखेंगे हम, देखेंगे हम। सर अगर कोई बॉडी है, अगर उसका सेंट्रॉइड हम जैसे हम कंसीडर करें, अगर वो स्पेस में यानी जीरो ग्रेविटी में,
तो फिर वो तो सर उसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो होगा ही नहीं, सिर्फ सेंटर ऑफ मास होगा सर। देखिए सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जब हम लेंगे या सेंट्रॉइड लेंगे ना, तो वो फिर सेंट्रॉइड का मतलब है इट कैन ईदर बी ग्रेविटी और मास। ठीक है, अब अगर आप किसी चीज का आप स्पेस में ना भी जाएं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, रिंग। ठीक है, रिंग, विच रिंग, that if you have a ring, the one you wear in the finger, the center of that ring is in space. Okay, it is not in metal. So line of force on the edge of this ring will be found if line of force passes through that object. Okay, then you can balance it. In one dimension you cannot balance the ring, in the other dimension yes you can balance the ring. It's a coplanar. ठीक है, तो रिंग की एक एग्जाम्पल है, तो उसमें भी हम सेंट्रॉइड तो हमारे पास होगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या सेंटर ऑफ मास है। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है डेफिनेटली उसके सेंटर में, दैट इज इन स्पेस। तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास जमीन पर भी होते हैं कि जिनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो स्पेस में हो। सर मैं ग्रेविटेशनल जोन से बाहर की बात कर रहा हूँ, जैसे हमारी सैटेलाइट्स हो गई हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी जी, आप उनकी बात कर रहे हैं, तो उनका सेंटर ऑफ मास तो होगा ना, तो फिर सेंटर ऑफ वही ग्रेविटी तो नहीं होगा सेंट्रॉइड ना। कहलाएगा, उसी वही को सेंट्रोइड। सेंट्रॉइड कहेंगे हम। तो सेंट्रॉइड जैसे मैंने कहा कि इट्स फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज वेल एज सेंटर ऑफ मास। सर ये हमारे पास वॉल्यूम के बारे में हम जिक्र कर रहे थे। इफ द बॉडी मेड ऑफ होमोजेनियस मटेरियल, ठीक है ना, then its density rho will be constant. Therefore, the differential element of volume dV has the mass dm is equals to rho into dV. ठीक है, तो मास क्या हो जाएगा, उसकी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दें उसके वॉल्यूम से। Substituting this into equation 9.2 and cancelling out rho, we obtain formulas that locate the centroid C or geometric center of the body, namely x bar, y bar, z bar। तो अब आप ये इसको वॉल्यूम dv लगा रहे हैं आप, ठीक है ना, पहले dm था, मास के ऊपर था, लेकिन अब मास की जगह आपने रो लगाया, रो dv, तो dm की जगह रो dv रखा। ठीक है, क्योंकि सबका वॉल्यूम जो था वो नीचे हमने लिखा है यहाँ पर भी ओवर द वॉल्यूम था, तो रो जो है वो कैंसिल हो गया। The equation represents the balance of momentum of the volume of the body. Therefore, if the volume possesses two planes of symmetry, then its centroid must lie along the line of intersection of these two planes. For example, a cone has a centroid that lies on the y-axis, so that x bar and z bar equals 0 and equals to, both are equal and equals to 0। यानी कि x और z कंपोनेंट इसके इक्वल हो गए और दोनों इक्वल हो गए 0 के। अब x और z दोनों 0 कहाँ होते हैं, y एक्सिस पर होते हैं। ठीक है, तो अब सेंट्रॉइड कहाँ मिलेगा आपको इसका, अलोंग y एक्सिस। अब y एक्सिस की एक और खासियत क्या है कि ये z और x एक्सिस का इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां पर x और z एक्सिस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं। इसको भी y एक्सिस की अगर आप दूसरी डेफिनेशन लें तो y एक्सिस की जो डेफिनेशन है वो ये हो सकती है कि द पॉइंट वेयर x एंड z एक्सिस मीट each other, so that point is called y axis. What is x axis? X axis is the point of intersection of z and y axis। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे एक्सिस को डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो एक्सिस होते हैं ये बेसिकली ये दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से वजूद में आते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको 9.3 फिगर नजर आ रही है, ठीक है। तो ये जो है आपका y है, y और ये z है। अब इस तरफ अगर z को बढ़ाएं और इस तरफ अगर y को बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि ये दोनों इस जगह पे इंटरसेक्ट होंगे, ठीक है। मतलब z x z तो इस तरह भी है ना, यहाँ से अगर मैं इसकी पिक्चर ड्रॉ करूँ z की, तो ये भी तो z होगा, यहाँ पर ये z है, ठीक है, ये भी z है, ये भी z है, ये सारा z है ना, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख करूँ तो ये y है, y इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। अब ये दोनों मर्ज किधर हो रहे हैं, यहाँ पर, ये इस लाइन के ऊपर मर्ज हो रहा है, ठीक है। तो लिहाजा इस लाइन को मैंने क्या कह दिया, एक्स एक्सिस, वेयर z एंड y मर्ज इंटरसेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक्सिस की एक नई डेफिनेशन भी एक तरह से कह सकते हैं मिल जाती है कि और y के ऊपर जो है z और x दोनों जीरो होंगे हमेशा। Can be found using the single integration by choosing a differential element represented by a thin disk having the thickness of dy and radius r equals to z. This volume is dv is equals pi r square dy, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर में पता है एरिया होता है, लेकिन आप उसको dy के ऊपर ले लें तो ये उसकी थिकनेस आ जाएगी। तो दो कंपोनेंट्स पाई आर स्क्वायर में कवर हो गया और एक कंपोनेंट यहाँ पर हो गया dy में, तो लिहाजा ये उसकी पूरी उसका पूरा वॉल्यूम आ गया आपके पास, ठीक है ना। डिस्क बन गई एक तरह की। और अगर डिस्क को आप एक डिस्क को दूसरी डिस्क के ऊपर रखें तो वो क्या बन जाता है, सिलेंड्रिकल शेप बन जाती है, ठीक है। which is equals to pi z square dy and its centroid is at x tilde 0 y tilde 0 y tilde y and z tilde 0, यानी कि z और x तो 0 हो गए, y की वैल्यू आपके पास बच रही है खाली, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस डायग्राम, ये कोन है, ठीक है। कोन को अगर आप इस तरह रखते हैं तो x, ये वाला x एक्सिस हो गया, यहाँ से ये z एक्सिस हो गया, तो इन दोनों के इंटरेक्शन से ये y आपको क्रिएट कर गया आपके पास, ठीक है ना। और इस लाइन के ऊपर आपके पास, अच्छा अब ये आप किसी भी एक्सिस पे ले सकते हैं, यहाँ फिलहाल हमने y पे लिया हुआ है, इसको अगर आप इसी तरह से घुमा के यहाँ ले आए कोन को, ठीक है, मिसाल के तौर पर आप इस तरह बना लें यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिर यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगी, फिर yz 0 हो जाएंगे, ठीक है। और yz का इंटरेक्शन क्या बनेगा, x बन जाएगा, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप किसी भी एक्सिस के अलोंग इसको ले सकते हैं। सेंट्रोइड ऑफ एन एरिया, जी सर अभी आपने बोला अगर एक्स एक्सिस पे होगा ये वाली कोन तो वाई जेड 0 हो जाएंगे, क्यों? इसलिए कि x एक्सिस के ऊपर z और y 0 होते हैं। अभी मैंने ये जो डायग्राम बनी हुई है ये वाली, ठीक है, इस डायग्राम में मैंने यही चीज क्लियर की थी ना कि एक्सिस की डेफिनेशन आपके पास एक तरह से नई डेफिनेशन ये भी आ गई है कि नंबर ऑफ डायमेंशंस नहीं इंक्रीज नहीं हुई है, डायमेंशंस, ठीक है ना, डायमेंशंस नहीं इंक्रीज। जैसे ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, इसमें मैंने इस वाली लाइन को कहा था कि ये अलोंग एक्स है, वाई है सॉरी, इसको मैंने कहा था कि ये अलोंग जेड है, ठीक है। तो ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है।
अब ये दोनों मिलते हुए आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? इस पे नजर आ रहे हैं, ये इस पे नजर आ रहे हैं ना दोनों मिलते हुए, ठीक है। तो जहां पर दो प्लेन्स मिल रहे होंगे उनके इंटरेक्शन से जो चीज बनेगी वो इनफैक्ट एक्स एक्सिस होगा, यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो डायमेंशन जो है वो इंक्रीज नहीं हुई है, हमने उसको रीडिफाइन कर लिया एक तरह से। रीडिफाइन किस तरह किया कि जहां दो एक्सिस, दो प्लेन्स इंटरसेक्ट हो वहां पे तीसरा प्लेन बन जाता है, तीसरा एक्सिस बन जाता है, कोई से भी दो ले, एक्स वाई जहां इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट को आप जेड कह देंगे, क्योंकि वो पॉइंट नहीं है, वो पूरी एक लाइन है, ठीक है, वो पूरी एक लाइन है। जेड एक्स जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो वाई बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उनको रीडिफाइन कर सकते हैं, डायमेंशंस इंक्रीज नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी हमने सेंट्रॉइड ऑफ अ वॉल्यूम निकाला है, उसका ये फॉर्मूला 9.3। अब हम सेंट्रॉइड ऑफ एन एरिया निकालते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ऑब्जेक्ट जब आप देखेंगे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स तो उनकी कोई ना कोई शेप तो होगी ना। अब शेप को हम फिजिकल क्वांटिटी से कनेक्ट कर देते हैं, तो उस वो फिर अब वॉल्यूम हर चीज का होगा, एरिया हर चीज का होगा, तो इससे हमें सेंट्रॉइड निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। कैसी ही शेप हो आप एरिया का फॉर्मूला लगा दें, तो जो एरिया आपने कैलकुलेट करा होगा उसका सेंट्रॉइड आ जाएगा। और आपको पता है एरिया हर साइड का होता है, जैसे अगर कोई क्यूब है, क्यूब की कितनी साइडें हैं? क्यूब की 6 साइडें होती है, ठीक है ना। अब अगर आप 6 साइडों का सेंट्रॉइड निकालें तो आप क्यूब का भी सेंट्रॉइड निकाल लेंगे, कि वो पॉइंट जो 6 के 6 सेंट्रॉइड से इंटरेक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो अब वो पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको? अगर आप इमेजिन करें तो वो क्यूब के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर फुटबॉल है, फुटबॉल का जो सेंट्रॉइड होता है, सेंटर होता है, वो स्पेस में है, ठीक है ना, वो किसी ऑब्जेक्ट पर तो नहीं आ रहा ना, फुटबॉल के अंदर है वो, उसका सेंटर पॉइंट। तो इसी तरह से क्यूब का भी, अगर आप एक क्यूब ले रहे हैं तो उसका भी सेंट्रॉइड उसके अंदर आ जाएगा। तो सेंट्रॉइड ऑफ एन एरिया, if an area lies in the xy plane and is bounded by the curve y equals to fx, you need to recheck your mic. What's the problem? ठीक है, आप अपने माइक को रीचेक करें, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके माइक में। xy plane bounded by a curve y equals to fx as shown in the figure 9.5a, then its centroid will be in this plane and can be determined from integrals similar to 9.3, namely वहां पर डी ए लिखा था, एरिया के ऊपर आप इंटीग्रेट कर रहे थे, सॉरी डी वी वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे थे, यहाँ पर आप एरिया के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चेंज आ गया, बाकी वहां आपने वी लिखा था वॉल्यूम के लिए, यहाँ पर ए लिखा हुआ है आपने एरिया के लिए, ठीक है ना। द रेस्ट ऑफ द स्टोरी इज द सेम एज वी हैड इन दिस वन, यू सी 9.3। तो इसके अंदर भी आप देखें वी था तो वॉल्यूम के ऊपर आपने इंटीग्रेट किया था, ठीक है, और यहाँ पर ए है तो एरिया के ऊपर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स वाई। अब क्योंकि एरिया किसी भी दो कंपोनेंट्स के लिए निकलेगा तो इसलिए एक्स वाई है, वॉल्यूम 3D होता है, ठीक है, इसलिए वो एक्स वाई जी था। एक्स वाई जरूरी नहीं है, एक्स वाई वाई जी एक्स जी कोई से भी दो हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख एक्स वाई दिया गया है, लेकिन डेफिनेटली एरिया जो है वो किसी भी दो एक्सेस में या कंपोनेंट्स में आप निकालेंगे, क्योंकि जेड में तो हो नहीं सकता ना, वो अगला जीरो होगा उसका। These integrals can be evaluated by performing single integration if we use rectangular strip of the differential area element. For example, if a vertical strip is used
the area of the element is DAY into DX. ठीक है, and its centroid is located at x is equals to x, y equals to y by 2. If we consider a horizontal strip, then dA is equals to x dy and its centroid is located x is equals to x by 2 and y equals to y. ठीक है, स्ट्रिप से मुराद क्या है कि जिस तरह से पट्टी होती है, ठीक है ना, तो वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है. तो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, अगर हॉरिजॉन्टल होगी तो उसका x बाय 2 आ जाएगा क्योंकि सेंटर में होगी ना वो, इसलिए y तो पूरा होगा और x का हाफ हो जाएगा, और अगर वर्टिकल होगी तो y का हाफ हो जाएगा और x पूरा होगा. तो आप ये बहुत आसानी से सिंगल उसमें निकाल सकते हैं. तो सेंट्रॉइड ऑफ अ वॉल्यूम हो गया, सेंट्रॉइड ऑफ अ एरिया हो गया, अब सेंट्रॉइड ऑफ अ लाइन. इफ लाइन सेगमेंट, फॉर एग्जांपल लाइन से मुराद है फिजिकल ऑब्जेक्ट के तौर पर आप इसे रॉड कह सकते हैं, जैसे रॉड्स होती है ना, तो उसको हम लाइन कह सकते हैं. lies within xy plane and it can be described by a thin curve y equals to fx. Then its centroid is determined by x bar dl. ठीक है ना, dv वॉल्यूम के लिए था, dA जो था वो एरिया के लिए था, और dl जो है वो लाइन के लिए हो गया. तो आपने लाइन के ऊपर इसे इंटीग्रेट कर दिया. Here the length of differential element is given by Pythagorean theorem dl equals dx square plus dy square under root. ठीक है, which can also be written in the form of dl equals to dx upon dx and dy upon dx. अगर आप x के रेफरेंस से कर रहे हैं, ठीक है, अगर y के रेफरेंस से कर रहे हैं तो dx upon dy और dy upon dy आ जाएगा फिर. ठीक है, बाहर भी dy आएगा, dx स्क्वायर dx स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर और dx बाहर चला गया. ठीक है, स्क्वायर में से आपने इसको कॉमन लेके स्क्वायर रूट से बाहर ले गए आपसे. तो या फिर आप dy के लिए करें तो ये एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन दोनों बेसिकली सेम है. जी बिल्कुल, अगर साउंड इशू आ रहा है तो वो हैंड्स फ्री के जरिए कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से उनकी जो मसला है वो हल हो सकता है. अच्छा, हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये दोनों एक्सप्रेशंस जो है हमारे पास, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस डायमेंशन में काम कर रहे हैं. ठीक है, तो 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर इंटू dx और dx अपॉन dy स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy. ठीक है, इसमें dy अपॉन dx है, इसमें dx अपॉन dy है. ठीक है, तो थोड़ा सा ये फर्क है, लेकिन हम दोनों सूरतों में लाइन ही निकाल रहे हैं, सेंट्रॉइड इसका ही निकाल रहे हैं. ठीक है ना, तो इसी तरीके से सेंट्रॉइड. अब लाइन की इमेजिनेशन क्या होगी, लाइन जैसे ये आप इस ए में देख रहे हैं, ये कोई लाइन है या रॉड जिसे हम कह रहे हैं. जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि अगर एक कोई रिंग लिया जाएगा तो रिंग का जो सेंट्रॉइड होता है वो इस स्पेस में है, वो रिंग के अंदर नहीं है. तो बिल्कुल इसी तरह से अगर ये रॉड आप कंसीडर कर रहे हैं जो ब्लू कलर में दिखाई है यहाँ पर, rather it's not blue, it's something different. तो इसका सेंट्रॉइड C जो कि इसमें नहीं है, ठीक है ना, इसके बाहर है ये. तो सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो तो x y होते हैं, तो इसलिए x बार y बार आ गए. अब लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आप लेंगे, ठीक है, तो वो पॉइंट जो होगा वो तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं ना. मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, जैसे यहाँ लिया गया है x टिल्डा y टिल्डा, मैं यहाँ भी ले सकता हूँ. ठीक है ना, मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे. ठीक है, इस रॉड के ऊपर.
तो वो सारे पॉइंट जो होंगे वो तो इस तरीके से कहलाएंगे ना, एक्स टिल्ड वाई टिल्डा एक्स टिल्डा। और 2D में होंगे क्योंकि लाइन जो है वो तो 2D में डिस्क्राइब की गई है, प्लेन के अंदर है लाइन, ठीक है ना। ये जो रॉड आपको नजर आ रही है, ये रॉड आपने 2D में, मतलब जैसे जमीन पे पड़ी हुई है रॉड। अब जमीन पे पड़ी हुई होने का मतलब क्या है कि वो एक्स और वाई एक्सिस में होगी ना, दीवार पे लगी हुई चिपकी हुई है अगर रॉड, तो भी दो प्लेन में है, ठीक है ना। जैसे ये रॉड देख रहे हैं आप, तो ये भी किसमें, 2 प्लेन्स के अंदर है। तो अब अगर आपने इसकी लेंथ निकालनी है या इसका सेंट्रॉइड निकालना है, तो फिर आप इसी तरीके से, अब ये चीज हमने पहले भी करी थी, ये वाली चीज, जब हम बैलेंस ऑफ रॉड्स देख रहे थे इक्विलिब्रियम, कि डी वाई डी एक्स, यानी कि आपको एक तरह होता था ना कि 3 4 5 दिया हुआ होता था, आपको एंगल नहीं दिया हुआ होता था। इस तरह से एक ट्राइंगल बनी हुई है, ठीक है, और उस ट्राइंगल की एक जगह पे लिखा हुआ है 3, एक जगह लिखा है 4 और एक जगह लिखा है 5, ठीक है। तो इससे आप इसका एंगल निकाल लेते थे कि इसका एंगल क्या है रेशियो से। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी ये चीज दी हुई है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक यू आर नॉट फेमिलियर विद दिस। ये जो ट्राइंगल बनी हुई है, ये सिर्फ आपको डीएल का एंगल बता रही है, ठीक है। तो एक्स और वाई कितना है, उस हिसाब से आप एल का एंगल निकाल सकते हैं आसानी से, ओके। सो proceeding further, either of these expressions can be used, however for application the one that will result in a simpler integration should be selected, ठीक है ना। जो ज़ाहिर है आसान हो हम वो हमेशा कोशिश करेंगे। For example, consider the rod in 9.6b, this one, defined by y equals to 2x square। ये फंक्शन आ गया जिससे इस रॉड को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The length of the element of is dl is equal 1 plus dy by dx whole square into dx, and since dy by dx is equals, ये होगा ना, अगर मैं dy by dx निकालूँ 4x आ जाएगा ना, then dl equals to 1 plus 4x whole square dx। The centroid of this element is located at x is equals x and y equals to y, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x जो है वो x पर है और y जो है वो y पर है। मतलब ये 1 मीटर है और ये जो है y कितना है, x 1 मीटर और y 2 मीटर है। तो इस चीज को देखते हुए कि आप x 1 रखें, y 2 आएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये एक्सप्रेशन बनाया गया है, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। अच्छा, अब अगर मैं इसको y इक्वल्स टू 2x रखता, y इक्वल्स टू 2x रखता तो क्या होता, y इज इक्वल्स टू 2 व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, वो तो 2x पे भी आ जाएगा। लेकिन x स्क्वायर इसलिए रखा गया है कि y इक्वल्स टू 2x में वो फिर स्ट्रेट लाइन बन जाता, ओके। दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन व्हाइल दिस रॉड डू नॉट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मैं वैसे अगर 2 रखूंगा x की जगह पर तो 2x से वो 4 बन जाता, ठीक है। लेकिन ये 2 रखने पर 8 बनेगा, तो यहाँ पर डायनामिक्स थोड़ी डिफरेंट है। तो ये डेफिनेटली हमें दिया हुआ होगा, y इक्वल्स टू 2x है या क्या है, तो हम इससे भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है या ये वाला करना है, ठीक है। अगर हमें x इज इक्वल्स टू 3y गिवन होता तो फिर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते जिसमें dx बाहर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर गिवन है, तो लिहाजा इसको हम dy बाई dx कर सकते हैं। इसी तरह अगर ये x इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर होता तो इसकी शेप भी ऐसे नहीं होती, फिर ये इस तरह से आता यू, ठीक है। तो उस सूरत में फिर हम dx बाई dy करते हैं, ठीक है। तो dx बाई dy का मतलब है कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अभी आपने ये वाला लगाया है,
अब जरा ये कॉन्सेप्ट्स के बाद थोड़ा सा एग्जाम्पल को फोकस करते हैं कि हम किसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे किसी एग्जाम्पल में। Locate the centroid of a rod bent into a shape of a parabolic arc as shown in the figure. ये एक रॉड है, इसका हमें सेंट्रॉइड निकालना है। हमें पता है रॉड या जो कर्व्स होते हैं, आर्क्स होती हैं, इनके सेंट्रॉइड इनसे बाहर होते हैं, इनकी बॉडी में नहीं होते, ठीक है, ड्यू टू देयर शेप। So as per solution, डिफरेंशियल एलिमेंट पहले हमें डिसाइड करना होगा। Differential element is shown in the figure 9.8. It is located on the curve at the arbitrary point xy. ठीक है ना, ये चीज यहाँ पर ये डिफरेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि हम इसको लेकर के पूरे रॉड के ऊपर इसे ऐड कर देंगे, इंटीग्रेट जिसे कहते हैं हम कर देंगे। जिस तरह आपने देखा था, हमने शुरू में जब हमने वॉल्यूम का निकाला था तो वहां हमने डी वी लिखा था, एरिया का निकाला तो डी ए लिखा था, लाइन का निकाला तो डी एल लिखा था। अब ये डी एल डी ए डी वी क्या होते हैं? दीज आर ऑल डिफरेंशियल एलिमेंट्स, कि जो हम कहते हैं कि एक एलिमेंट आपने निकाल लिया, अब वो एलिमेंट उस पर्टिकुलर शेप में जितने भी हैं उन सबको ऐड कर दें, ठीक है। इंटीग्रेट का मतलब उस जैसे सारे एलिमेंट्स को आप इकट्ठा कर दें तो वो पूरी चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस व्हाट वी मीन बाय डिफरेंशियल एलिमेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डिफरेंशियल एलिमेंट छोटा सा आपको रॉड पे नजर आ रहा होगा, जिसको हमने एक्स बार वाई बार दिखाया है, ठीक है। तो पहला स्टेप हमेशा, ये स्टेप्स है एक तरह से, कि जब भी आपने ये काम करना हो सेंट्रॉइड का, तो पहला काम आपका होगा कि यू नीड टू लोकेट द डिफरेंशियल एलिमेंट। सेकंड स्टेप इज टू द एरिया एंड मूवमेंट आर्म्स, ठीक है। डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl can be expressed in terms of the differential elements dx and dy using the Pythagoras theorem, ठीक है ना। ये अभी हमने किया है कि dl के रेफरेंस से आप dl कैसे निकालेंगे, x और y के रेफरेंस से। तो यहाँ आपने वही मेथड लगाया, dl निकाला, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx अपॉन dy स्क्वायर प्लस 1 dy। ये dy जो है ये स्क्वायर रूट के बाहर है, ठीक है, ये dy स्क्वायर रूट के बाहर है। अब यहाँ रॉड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वजह से अब dx अपॉन dy करेंगे ना, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया dx अपॉन dy वाला, ठीक है। Since x is equals to y square, then dx upon dy equals to 2y. Therefore, expressing dl in terms of y and dy, we have dl equals to 2y square plus 1 dy, ठीक है ना। dy dx upon dy की जगह वैल्यू रख दी 2y, स्क्वायर करके इसको सॉल्व करा तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया dl। इक्वेशन 9.5 अप्लाई करें तो हमारे पास x का एवरेज आ गया, जीरो टू 1 मीटर, ठीक है ना, क्योंकि x में आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 मीटर है,
ठीक है, वाई में भी इसको आपको 1 मीटर गिवन है। इसकी पोजीशनिंग क्या है, ये चीज़ें आपको गिवन होंगी तो आप ये निकाल सकते हैं। इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। सिंपली आपने x से वही फार्मूला रखा है, इसको सॉल्व कर दिया 0 to 1 मीटर, और यहाँ भी आपने 0 to 1 मीटर, क्योंकि x नहीं होगा, ठीक है ना, ये फार्मूले में ऊपर सब करके आ रहा है। तो x के अंदर आपको पॉइंट मिला 0.41, एवरेज होता है ना, सारे पॉइंट्स पर आपने एवरेज निकाल दिया है। यही काम y पे करें, 0 to 1 0.57, ठीक है। अब x पे 0.41 चले, y पे 0.54 मीटर चले, तो आपको सेंट्रॉइड मिल जाएगा इसका, वो पॉइंट ये आया। एक्सक्यूज, okay, so we were discussing this. डिफरेंशियल एलिमेंट इज क्लियर, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल एलिमेंट? ये हमें हर दफा निकालना होगा, चाहे आप किसी वॉल्यूम का सेंट्रॉइड निकाल रहे हो, आप किसी जो है एरिया का निकाल रहे हो, किसी लाइन का सेंट्रॉइड निकाल रहे हो, तो ये चीज़ हमें निकालनी हो, क्योंकि ज़ाहिर है हमें उसको बैलेंस करना है ना, तो बैलेंस करने के लिए हमें वो पॉइंट का पता होना ज़रूरी है, और उस पॉइंट से हम उसको बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो हर दफ़ा डिफरेंशियल एलिमेंट निकालेंगे, उसके बाद आप उस डिफरेंशियल एलिमेंट से एरिया एंड मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है। जैसे हमने ये निकाला डीएल डिफरेंशियल एलिमेंट, ये हमें गिवन था x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो dx अपॉन dy 2y था, हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करा, ठीक है। फिर x और y के फार्मूलों के मुताबिक यहाँ जो हमने फार्मूला डिस्कस किया था लाइन का, ये वाला सेंट्रॉइड ऑफ अ लाइन, तो x और y से पता चल जाएगा हमें, ठीक है। तो फार्मूला क्या था कि x dl और y dl, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। अगर आप प्लेन इसमें टर्म्स में इसको देखें, तो वही हमने यहाँ किया है इसके फार्मूले में, एक्स डी एल, तो एक्स लगा दिया, ये इसका डी एल आ गया जो हमने निकाला है ऊपर ये, ठीक है, 0 to 1 मीटर। डी वाई 0 to 1 मीटर,
x किसके बराबर था, वाई स्क्वायर के बराबर था, तो हमने x की जगह पर वाई स्क्वायर रख दिया। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, dy था ना ये, तो डेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, 0 to 1, तो अब 0 to 1 के लिए क्या करेंगे, 1 की वैल्यू रखेंगे y की जगह, माइनस 0 की वैल्यू। ठीक है, 1 की वैल्यू y की जगह और माइनस 0 की वैल्यू। तो इससे हमारे पास ये आंसर जो है वो आ जाएगा। मतलब आप न्यूमरेटर को अगर सॉल्व करें तो y की जगह आपने 1 रखा, वाई स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5, स्क्वायर रूट 5 की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, दूसरा y की जगह 0 रखेंगे आप, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 में तो कुछ आएगा नहीं, खाली 1 में ही आएगा। इसी तरह यहाँ आप करेंगे 0 to 1, तो y की जगह आपने वाई स्क्वायर की जगह 1 रखा, तो स्क्वायर रूट 5 आ गया। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 5 जो है उसकी क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, पहले इसको इंटीग्रेट कर लें आप। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इस पूरे की पावर क्या आ रही है, 1/2। ठीक है, अब आप dy ले रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होता है, n+1/n+1। ठीक है, तो 4y² + 1 की होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, यानी कि वो ऊपर जाएगा तो वो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ उसे, तो मैं लिख रहा हूँ उसको कि दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 3/2 की जगह वो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा, तो 5 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, बल्कि स्क्वायर रूट 5 नहीं आएगा, इसकी पावर तो 3/2 हो चुकी है ना, 5 की पावर 3/2 1.5, तो क्या आएगा वो आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। तो इसलिए फ्रैक्शंस में आ रहा है ना आंसर। ठीक है, और ऊपर जो आप निकालेंगे वो भी इसी तरीके से होगा कि आप उसका जो है वो कहना चाहिए डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद जो इसका आंसर आएगा उसमें फिर आप लिमिट 1 रख देंगे 0 पे, तो वो सब 0 हो जाएगा, तो लिहाजा नेगेटिव वाला फैक्टर तो खत्म हो जाएगा अपने आप। ठीक है, इसको आप चाहें तो सिर्फ इस चीज़ को लिख लें, ताकि इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही आंसर आ रहा है आपका या नहीं आ रहा, और ये आंसर कैसे आ रहा है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि x जो है वो आपके पास यहाँ से ये वैल्यू आ गई है कि x ये होगा। ठीक है, फिर यही काम आपने y के साथ कर लिया, y का फार्मूला आपको पता है। ठीक है, ये सब कुछ आपने y के साथ करा, तो y के साथ किया तो y का ये आ गया 0.574। अब y और x दोनों आ गए आपके पास, तो अब आप इस ग्राफ में इसको लोकेट कर लें कि कहाँ आ रहा है, x पे कहाँ आ रहा है, पॉइंट क्या आ रहा था x पे, 0.41। ठीक है, तो 0.41 जो है यहाँ तक इसका है 1, तो यहाँ तक हाफ होगा, ये हाफ है, और ये 0.41 x आ गया, और y के ऊपर ये आपका आ जाएगा 0.57। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका लोकेट हुआ कि अगर ये वाली रॉड है ब्लू कलर में, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इनफैक्ट आपका सेंट्रॉइड है, और मतलब सेंट्रॉइड का कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है और सेंटर ऑफ मास भी है। ठीक है, इसी तरह से determine the distance y measured from x-axis to the centroid of the area of a triangle shown in the figure। ठीक है, तो ये ट्राइंगल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको फिलहाल यहीं तक रखते हैं। और इसमें अगर किसी को कोई चीज़ देखनी हो तो मैं ये जो सिर्फ यही 2 पेजेस हमने करे हैं आज, तो ठीक है ना, तो मैं पिछली क्लास और आज की क्लास के जो लेक्चर्स है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा कि उसमें कोई चीज़ अगर आपको बॉदर कर रही होगी तो वो आप मुझसे उस पर पूछ सकते हैं ग्रुप में। ठीक है,
Anything else you want to ask? Okay then, see you inshallah next class. Allah Hafiz.